Students, welcome to my channel. Today for class 10th, I brought a new chapter, pair of linear equations in two variables. This is very important chapter for the CBSE and NCERT syllabus. Just I am looking toward the concepts which will helpful to you all students. So just I am going to start. First we have to know that what is the linear equation. Before this, just I have to think about the algebraic expression. Algebraic expression. Algebraic expression 2x plus 3, 5x plus 3y, 3x square plus 2. These are algebraic expression. So, you see this is the constant in real number and this is the variable part. So, algebraic expression means a combination of variables. Variables means letters, alphabetical letters, which assigned the different values. Variables, you see, variables, okay, alphabet letters, alphabet letters. That means literals. It is also called literals, okay, which assigned different values, as for 2x. 2 is real number constant. It is also called coefficient of, and this is variable part. So in previous class you have studied about this, a combination of variables and constants, which are connected with four mathematical operations. Operations means plus, minus, multiply and divide. So this is called algebraic expression. And the another term is equation, which has came here equation. If any algebraic expression is with equal to sign, any algebraic expression, suppose 2x plus 3y is equal to 0. This is the algebraic expression with equal sign. So any algebraic expression with equal to sign is called equation.
There are so many equations in algebra, but we have to study about the linear equation. So we have to study about the linear equation. So first we know linear equation क्या है. Linear equation, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू साइन के साथ हो, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन कहलाता है तब जब लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन देखिए आप, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3. आप देखिए डिग्री 1, एक्सपोनेंट ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 1 है. सो इट इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन, the equation is called linear equation if the greatest degree of variable is 1, जैसा कि हमने बताया. अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, if linear equation और the equation इस तरह आप लिख सकते हो, the equation of greatest degree 1 है with 1 वेरिएबल. इसको एग्जाम्पल में आप लिखिए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अब जिसमें कि 1 के जगह 2 वेरिएबल्स हो. द इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 with 2 वेरिएबल्स. एग्जाम्पल में आप देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. तो इस तरह से मैंने कुछ स्मॉल टर्म्स को आपके सामने रखा. सो स्टूडेंट्स, जिन टॉपिक्स पर हमको डिस्कस करना है फर्दर, वो सारे टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं. बेसिक कंसेप्ट्स में हमें सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक मिला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो हमने इसके पहले भी बताया कि द इक्वेशन और यस द इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल हैविंग ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is 1. Linear equation in 1 variable. It is called linear equation in 1 variable. And the general form of linear equation in 1 variable is
ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर इसी कड़ी में हम आते हैं अब आगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। लीनियर इक्वेशन which has two variables is called linear equation in two variables. Linear equation in two variables, और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द इक्वेशन which is of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a not equal to 0, b not equal to 0 and a b c belong to real number। यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा a is not equal to 0, क्योंकि a जो है वह क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x है। वेरिएबल x को एग्जिस्ट कराना है तो a को जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में x और y के वो सभी वैल्यू जो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, एक्स वाई के वो सभी वैल्यू जो सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का तरीका देखिए कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 3y इज इक्वल टू, ये दोनों को राइट साइड ले जाते हैं, -2x -8 और y इक्वल टू -2x -8/3, जिसको हमने लर्न किया 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। अब क्या है कि हम x का वैल्यू रखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू प्राप्त होगा। सपोज कि हमने रखा 2 1 जा 2 तो -10 हो जाएगा और 3 -10/3, ये बात अलग है। सपोज 2 2 जा 4, अब हमने रखा यहाँ 2 2 जा 4, x पुट x इक्वल टू 2 हमने रखा। तो देखते हैं क्या कि y इक्वल टू -2 इंटू 2 -8/3, तो -2 2 जा -4 -8/3 यानी -12/3 यानी -4। अब ये कोऑर्डिनेट के रूप में, कोऑर्डिनेट फॉर्म के रूप में 2 और -4, यह एक सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ज़रा देखिए कि हम यहाँ पे इसको करते हैं 2 और -4 लेकर के, तो LHS RHS इक्वल आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो हमने x का वैल्यू 2 लिया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -4 लिया प्लस 8। अब रिजल्ट देखा, 2 2 जा 4 -12 प्लस 8, 12 - 12, ये देखिए 0 आ गया। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो है एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के रूप में होगा, वो सभी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारा एक वैल्यू जो दिख रहा है
वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब क्या होगा, इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे, और एक स्ट्रेट लाइन जो है जैसा कि आप देखते हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक स्ट्रेट लाइन देखिए ये है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बने होते हैं। और सपोज कीजिए कि ये जो है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मीन्स इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो सॉल्यूशन होंगे। अगर ये 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट जो हैं वह इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर हम लोगों को टॉक करना है। क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? जब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पेयर में हो, ए पेयर ऑफ लीनियर equations in two variables such that a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are said to be system of linear equations in two variables if a pair of values of x and y satisfy both the equation। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। आप देखिए कि x का अगर 1 और y का 1 लेते हैं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। देखिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 5 आ गया। यहाँ देखिए 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। दैट मीन्स एक पॉइंट है 1 1 जो बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यह कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसी के आगे बढ़ते हैं और हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये दो टर्म को जानना है इन टू वेरिएबल्स, और देन हमारा जो फाइनल टच होगा कि किस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन, मेथड्स फॉर फाइंडिंग solution, methods for finding solutions of system of linear equations into variables, and condition to know, one of the point here, condition to know that the system of, यहाँ पर लिख देते हैं condition, condition to know about it कि कौन है कंसिस्टेंट और कौन है इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में हमको जानना है। तो आते हैं और देखते हैं कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, और उनके कंडीशंस जानने के लिए हमारे पास
अब देखिए वी हैव ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जिसे हम जनरल फॉर्म है बताया, जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वेयर a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a1 b1 c1 belong to real, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0, and a2 b2 and c2 ये सभी हैं बिलोंग टू रियल नंबर। अब हमारे पास है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट में ये तब कहलाते हैं जब एट लीस्ट वन पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y जो है इनको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कंसिस्टेंट के बारे में देखिए, कंसिस्टेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स are said to be consistent if at least a pair of values of x and y satisfy both the equation। कंडीशन कैसा आएगा, कंडीशन आएगा a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ओके, देन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके आगे आते हैं इन कॉन्सिस्टेंट और डिपेंडेंट। एक है कि कॉन्सिस्टेंट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। इसके लिए जो कंडीशन है वह है कि अगर इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 आ जाए तो ये डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस have infinite number of solutions, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, जब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको तो उस एग्जाम्पल में देखिए कि कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, फिर इन कॉन्सिस्टेंट का चर्चा करेंगे। देखिए कॉन्सिस्टेंट के लिए एग्जाम्पल, कॉन्सिस्टेंट एग्जाम्पल आप इनको ध्यान से देखेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ क्या है कि a1 जो है वह 2 है, इसको आप इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लाइए, -7 इक्वल टू 0, इधर -9 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c। तो a1 2 हो गया, b1 3 हो गया और c1 -7। इधर फिर a2
3, B2 5 और C2 -9। अब ज़रा देखिए, निकालते हैं रेशियो। A1/A2 ये आया 2/3, B1/B2 ये आया 3/5। तो हम क्या देखते हैं, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस तरह के जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन the given system of equation have unique solution। यही है कंसिस्टेंट के एग्जाम्पल। अब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ये तो कंसिस्टेंट हो गया, अगला है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। यहाँ पर मैंने लिया 2x + 3y - 6 = 0 एंड 4x + 6y - 12 = 0। अब ज़रा देखते हैं हम इनके रेशियो फाइंड आउट करके। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, A12, B13, C1 -6, A24, B26 और C2 -12। जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं A1/A2 तो ये आता है 2/4 जो 1/2 है, B1/B2 जो आता है 3/6 ये भी 1/2 और C1/C2 = आता है -6y -12 ये भी आता है 1/2। हमने देखा कि A1/A2 आया इक्वल टू B1/B2 = C1/C2। दैट मीन्स ये है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का ही ये भी एग्जाम्पल हुआ और इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये थे कंसिस्टेंट और अब हम चर्चा करेंगे इनकंसिस्टेंट का। तो देखते हैं इनकंसिस्टेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ए पेयर ऑफ linear equations in 2 variables a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0 where a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0 and a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers such that a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, then there is no solution of given pair of linear equations in 2 variables. Linear equations in 2 variables are said to be
inconsistent system of linear equation. ये है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल में देखिए 3x प्लस 5y माइनस 6 एंड 6x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखते हैं क्या, a1 3 है, b1 5 है, c1 माइनस 6 है, a2 6 है, b2 10 है, c2 8 है। हमारे पास रेशियो a1 a2 का आता है 3/6 जो 1/2 है, b1 बाई b2 5/10 ये भी 1/2 है, c1 बाई c2 इज इक्वल टू आता है -6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व कि a1 बाई a2 ये तो b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, बट ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया है। इट मीन्स जो है इट दैट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ देयरफॉर द गिवन system of linear equations in two variables, linear equations in two variables have no any solution। तो इस तरह से हमने इसको बताया कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। स्टूडेंट्स, नाउ यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो मैं सॉल्यूशन के लिए बताता हूँ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। ये दो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्हीं को कहा जाता है। अब फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यू or values which satisfy both the equation called solutions। okay, suppose x equal to a, y equal to b, ये सेटिस्फाई करता है, satisfying, that means AB is the solution of both equation। और तरीके कितने हैं, मेथड्स देखिए। फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, ये है दो मेथड्स है। एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा, ग्राफिकल इसी को जियोमेट्रिकल भी कहते हैं। ये ऑन द स्केल यूज़ किया जाता है, ग्राफ पेपर का यूज़ किया जाता है। और एक है अलजेब्राइक मेथड। अब ये ऑन द ग्राफ पेपर यूज़ किया जाता है, इसको ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ पेपर
जब ग्राफ पेपर होगा तो आप इस मेथड का यूज़ करोगे। और अलजेब्रिक मेथड है, 3 प्रकार के मेथड्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे आपके स्टैंडर्ड में पढ़ना है, मैं वही बता रहा हूँ। सेकेंड वन है एलिमिनेशन मेथड, मिनेशन मेथड। एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे हम विस्तार से आगे हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। स्टूडेंट, नाउ we are going to discuss methods for finding solution of system of linear equations into variables by graphical method. First of all, तो linear equations 2 variables in a pair of equations हम a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब हमारे पास जो कंडीशन होंगे वो क्या क्या होंगे। कंडीशन नंबर 1 बताया ही कि जब a1/a2 होगा इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये होंगे यूनिक, मतलब एक वैल्यू ऑफ x और एक वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई करेगा। और जब इनके ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो सपोज करो कि ये 2 लाइन होगा 2 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के लिए। ये हमने कंसीडर किया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का है। और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बताया ही गया है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये किस तरह के ग्राफ हुए। ये ग्राफ हुए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनके ग्राफ कैसे हैं। ग्राफ कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज कि इनके कोऑर्डिनेट ए बी हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इनके जो सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों ने जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसका कोऑर्डिनेट ए बी पर इंटरसेक्ट किया। ओके। नंबर 2 कंडीशन जो आता है वह है a1/a2 और ये कंसिस्टेंट हो गया, इसको आप कंसिस्टेंट मानो, कंसिस्टेंट। नंबर 2 है कि अगर a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल आया और c1/c2 भी इक्वल आ गया तो ये भी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये हो जाएंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और इनके जो ग्राफ अभी देखेंगे वह कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हर एक पॉइंट a1
एक्स प्लस b1y प्लस c1 को रिप्रेजेंट करने वाला, और a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन को भी यही सब पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यानी इस तरह के लाइन को कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स। ओके, एंड थर्ड वन है, थर्ड नंबर, इफ a1 बाई a2 तो इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 ये इक्वल नहीं हुआ, तो ऐसे को कहते हैं सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इसी तरह के जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इनके जो ग्राफ होंगे वो पैरेलल लाइंस होंगे। इनके ग्राफ कैसे लाइंस होंगे? कोइंसिडेंट लाइंस के बाद वाला एक दूसरे टाइप बता रहा हूँ, ये और दूसरा, ये पैरेलल लाइंस है। ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के, और ये हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी इनके ग्राफ पैरेलल लाइंस होंगे। तो ये था ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करोगे वो बताना। आगे हम बताएंगे अलजेब्रिक मेथड से किस तरह से आप तीन मेथड्स का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करोगे। अब हम बारी बारी से इस लीनियर इक्वेशंस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला अलजेब्रिक मेथड आता है वह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करते हैं कि ये इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और ये इक्वेशन 2। इसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए तो इस तरह से b1y आता है माइनस a1x माइनस c1, और y आता है माइनस a1x माइनस c1 बाई b1। अब इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 नॉट इन इक्वेशन 1। तो a2x प्लस b2 और यहाँ माइनस a1x माइनस c1 बाय b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं b1, तो b1 a2x और ये प्लस माइनस माइनस a1 b2 x और प्लस माइनस माइनस b2 c1, और फिर यहाँ से b1 c2 प्लस b1 c1 a2x b2 c2 here c2, तो b1 c2 ओके ये 0 आता है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0। अब यहाँ पे ये b1 a2x माइनस a1 b2x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। अब इसको राइट साइड ले जाते हैं b2 c1 और माइनस b1 c2। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो b1 a2 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2। तो क्या आता है, x का वैल्यू आता है b2 c1 माइनस b1 c2 b1 c2 ओके बाय b1 a2
माइनस A1 B2, माइनस कॉमन ले लीजिए, B1 C2 माइनस B2 C1, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, A1 B2 माइनस A2 B1, ये x का वैल्यू आया। अब इस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 या 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A1 और यहाँ आएगा x का वैल्यू, ये B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ओके, माइनस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ओके। अब ये B1y रखते हैं और ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों ले जाते हैं, माइनस A1 B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, माइनस यहाँ से क्या आएगा, C1 आएगा। अब देखते हैं क्या, B1y इक्वल टू, ये आ गया माइनस A1 B1 C2 माइनस माइनस प्लस A1 B2 C1, ठीक है। और फिर ये तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A1 B2 C1, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और A2 B1 C1, ओके। देन क्या हो जाएगा, बाय A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ से कुछ कैंसिल लग रहा है, A1 B2 C1 A1 B2 C1 A1 B2 C1, दिस कैंसल। अब y इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा A2 B1 C1 माइनस A1 B1 C2 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, और साथ में ये B1 आएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास में B1 कॉमन लेने के लिए है B1, तो A2 C1 माइनस A1 C2 बाई ये B1, तो क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से हमारा वैल्यू जो है y का ये आया और x का ये आया। तो इस तरह से हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट कर दिया। अगला एलिमिनेशन मेथड है, जिसके द्वारा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये जो कोएफिशिएंट देख रहे हैं, x के कोएफिशिएंट A1, x के कोएफिशिएंट A2, y के कोएफिशिएंट B1, y के कोएफिशिएंट B2, किसी एक के कोएफिशिएंट को बराबर करना रहता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 B2, और इसको B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 B2 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय B2 एंड इक्वेशन 2 बाय B1 in both sides, not in one side, both sides, we get to another equations। हम दो अलग इक्वेशन प्राप्त करते हैं। B2 से A1 को करते हैं तो A1 B2 x, B2 B1 यानी B1 B2 y, प्लस B2 से C1 को B2 C1 इज इक्वल टू 0 से B2 को करेंगे। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हमारे पास B1 से सबको करना है, तो ये B1 A2 या A2 B1 रखिए, A2 B1 x प्लस B1 B2 प्लस B1 C2, और यहाँ पे सभी देखिए प्लस 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 प्लस, जो इक्वल है वो प्लस है, मतलब सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 को पहले a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0, और यहाँ a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होगा फ्रॉम 3 को हमने लिखा, ये कैंसल, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से x का वैल्यू आया। फिर इसी x का वैल्यू जैसा कि हमने पिछले भी जो मेथड था उसमें प्रयोग किया था, तो सब्स्टिट्यूटिंग और यूजिंग द putting the value of x in equation फर्स्ट, तो a1 और x का वैल्यू यहाँ b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेम है b1y, ये ले जाते हैं इस साइड, माइनस a1 b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस c1। अब b1y इक्वल्स टू माइनस a1 b1 c2 प्लस a1 b2 c1 प्लस, और यहाँ पे फिर माइनस a1 b2 c1 प्लस a2 b1 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो b1y यहाँ से कैंसिल देखिए होगा a1 b2 c1, और यहाँ b1y इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे जो बचा हुआ है, तो इस दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस b1, जहाँ तक होगा ये हमारा क्या आ रहा है a1 c2, और ये आ रहा है माइनस a2 c1 बाय यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, b1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b1 और b1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ a2 c1 माइनस a1 c2 साइन चेंज कर दिया बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये b1 की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह हमारा y का और x का जो वैल्यू है वह एलिमिनेशन मेथड से कंप्लीट कर दिया गया। अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो लास्ट मेथड है अलजेब्रिक मेथड। इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं कि हम कैसे एक नेट बनाते हैं, जिस नेट को आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाइंग। तो यहाँ पर हम x लेते हैं, नेट जो हमने बताया इसको प्रैक्टिस कर लोगे आप, और इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। यहाँ x के नीचे b1 b2, फिर कांस्टेंट c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2।
अब इस तरह से क्रॉस करते हैं। क्रॉस में ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेना है यहाँ से, इसका ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, x बाय B1C2, इसके बीच में माइनस रखना है, बीच में माइनस, ये ध्यान रखना है। स्टार्ट यहाँ से करना है B1C2 और माइनस का साइन B2C1। फिर देखिए y रखना है, फिर स्टार्ट यहाँ से करना है, हमेशा स्टार्ट यहाँ से, स्टार्ट तो C1A2 और बीच में माइनस साइन C2A1 और फिर यहाँ 1 बाय A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हमारे पास में देखो फर्स्ट और लास्ट से x आता है, जो यहाँ 1 इंटू B1C2 माइनस B2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1 एंड y आता है C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया। और हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।